goes into the correct area, then this is this. Okay, दो पॉसिबिलिटीज हैं एक्चुअली हमारे पास, अगर आप नोट करो कि वो क्या ये रहा है कि या तो हमारी फर्स्ट सर्व जो है ये हमारी फर्स्ट सर्व है, ठीक है, दैट शुड गो इनटू द करेक्ट एरिया। एक पॉसिबिलिटी ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दैट इट डजंट गो इनटू द करेक्ट एरिया। एग्रीड? ओके, जाना समझ आए वहीं पे रोक के मुझे बता देना। अब फर्स्ट सर्व करेक्ट एरिया में जाने की प्रोबेबिलिटी है परसेंटेज ऑफ deviate दैट इज 65%, so it means the value should be 0.65. So what would be the probability of not going into the correct area then? 1 से 1 से माइनस कर देंगे, 1 minus 0.65 would give you 0.35. गुड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर कहता है, अच्छा इन क्वेश्चंस को ना यू हैव टू गो बाय लाइन बाय लाइन, ठीक है, यू कैन नॉट रीड अ कंप्लीट पैराग्राफ एंड देन स्टार्ट फ्रॉम ऑल ओवर अगेन, इट्स जस्ट लाइक अ टाइम वेस्ट। सो जैसे जैसे आप रीड करते जाते हो सेंटेंस बाय सेंटेंस जस्ट पुट द इंफॉर्मेशन डाउन ऑन विद पेन, ठीक है। अब करना क्या है, इट सेज इफ द फर्स्ट सर्व गोज इनटू द करेक्ट एरिया, सो बेसिकली इस करेक्ट एरिया की बात कर रहा है, सो बेसिकली इसके आगे की डायरेक्शंस बता रहा है। His chance of winning a point, so there is two things that can happen, either he wins the point or either he loses the point. Okay, for winning the point the probability is 90%, means 0.9, and for losing the point the probability would be 0.1. 0.1. हाँ मेरा क्लियर हो यहाँ तक? जी। Okay, same thing then, here from here on out, if his first serve does not go into the correct area, means ये bottom branch की बात कर रहा है, Don is allowed a second serve, okay, and of these 80% goes into the correct area, okay, so second serve जब होगी तो there is a possibility कि वो दोबारा से correct area में जाए और either it doesn't go into the correct area. So for the probability of going into the correct area for the second serve is 80%, means this value should be 0.8, and for not going into the correct area the probability would be 0.2. ठीक हो गया? अब it says if the second serve goes into the correct area, means it's talking about this branch. So ये second का serve थी और ये correct area था second serve का. This chance of winning the point is 60%. So after this correct area, there is a possibility of winning or losing a point. For winning, the probability is 60%, means 0.6, and for losing, it's 0.4. If neither serve goes into the correct area, means this bottom curve, Don loses the point. So what would be the probability for winning the point? हाँ, ये जो लास्ट लाइन है, if neither serve goes into the correct area, Don loses the point. What does it mean? Don loses the point का मतलब क्या होगा? He does not win. Sorry? He does not win. So तो win या lose की probability, किसी एक की probability बताओ क्या होगी? यानी win की चलो पहले बता दो. What would be the probability for winning then? I think 0. 0. बिल्कुल ठीक है, 0. Because it says it will definitely lose a point. तो losing point की probability 1 होगी. यहाँ तक clear हुआ कि नहीं हुआ? जी. हाँ मेरा, you? जी। Okay. So because if हमारा area, sorry area कह रहा हूँ, tree ठीक होगा, then हमारे answers आगे वाले भी ठीक होना शुरू होंगे. So we are done with the first part. इसके 4 marks थे. ठीक है? Then it says using your tree diagram, find the probability that Don loses a point. Okay. It doesn't say that it loses a point on the first serve or the second serve. So it doesn't matter. So you have to select all those branches in which Don loses the point. Okay. कौन-कौन सी branch है जिसमें Don lose कर रहा है point? हाँ. If you see, one is this serve. Okay. देख लो एक सेकंड, सॉरी मैं कलर जो है ना दूसरा चूज कर लूं. हाँ. Okay. One is this serve
correct area and then losing a point. Then there is a possibility of going in not into the correct area. Second serve goes into the correct area and he still loses the point. This is your second branch. And there is a third branch that it goes into the correct area both time and then he loses a point. So देख रहे हो, there are three branches in which he is going to lose the point. बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ मायरा, आपको? जी, ओके, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ. आई थिंक इसका पार्ट भी यहीं पे कर लेते हैं. Okay, so for the second part, so the branches we have selected is correct area and then loses, or not correct area, then correct area and then loses a point, or not correct area both times and then loses a point. These are the three branches that we have selected. जो मैंने highlight किए हैं actually उन्हीं branches को मैंने अपने लिए इस तरह से लिख लिया. So write down the values now. So क्या लिखेंगे first branch की? 0.65 into 0.1 0.65 times 0.1 plus 0.35 into 0.8 into 0.4 0.35 into 0.8 times 0.4. 0.4 Okay, then plus 0.35 times 0.2 times 1. That is the last branch that we have written down. So the answer that you would be getting is 0. What?0.247 बिल्कुल ठीक है. मायरा, आपने किया? जी, यही आंसर है. जी, ओके, लेट्स ट्राई द लास्ट वन. ओके, मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि इसका भी मैं यहाँ पे इस ट्री को नीचे कर देता हूँ. ठीक है, मैं ये हाईलाइटेड ब्रांच ट्रेस कर देता हूँ. नेक्स्ट पार्ट के लिए हम दोबारा से उसकी हाईलाइटेड ब्रांचेस को यूज करेंगे. ठीक है, बट फर्स्ट लेट्स जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. अब it says find the conditional probability. Okay, the Dawn first serve went into the correct area. Okay, given that, अगर if you remember, जहाँ पे भी given that का word होता है, that automatically represents कि ये conditional probability का question है. So in case वो यहाँ पे conditional probability ना भी mention करता, ठीक है, so given that, so you should be able to identify that this is conditional probability. So I told you कि जब भी given that होगा तो हम उसका formula create करेंगे. अब फॉर्मूला क्रिएट कैसे होता है कि आपने यूं करके डैश लगाई, अब गिवन दैट के बाद जो भी चीज लिखी होगी दैट कम्स राइट हियर. सो लेट मी राइट डाउन गिवन दैट राइट हियर. ओके, गिवन दैट किसके साथ लिखा है? गिवन दैट ही लूजेस द पॉइंट, सो लूज वुड कम राइट हियर. दिस इज लूज. ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा कि गिवन दैट के बाद क्या लिखना है? Okay, and what do we have to find? We have to find the probability that the first serve went into the correct area. So this is your first serve. Remember that. First serve goes into the correct area. So if I have to write down the formula for conditional probability right now, तो वो ये बनेगा probability of first correct area and then losing a point divided by probability of losing a point. जो भी यहाँ एंड में चीज होती है, यानी दिस वन जो गिवन दैट होता है, वो चीज यहाँ डिनोमिनेटर में आती है. यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? कि हाउ डू वी क्रिएट द फॉर्मूला फॉर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? हाँ मायरा, अनस.
Yes. Okay, let's just shade the branches. Okay, first criterion then loses a point. Can you tell me कि branch में मुझे किस point से do I have to go up or down? Up. After that down, down. बिल्कुल ठीक है. So this is the only branch that would come in the numerator. So 0.65 times 0.1 whole divided by. Now you have to shade every branch for that contains a losing point. Okay, can you tell me which branch contains the losing point? Actually, it would be same as this second part. ठीक है. अगर आप देखो जो सेकंड पार्ट में हमने ब्रांचेस लिखे हैं दे वर ऑल फॉर द लूजिंग पॉइंट और क्वेश्चन भी यही था कि वी हैड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द लूजिंग पॉइंट. तो देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू कि आप दोबारा से लूजिंग पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी लिख दो, दैट्स आल्सो कंप्लीटली फाइन. और इफ समवन वांट्स टू डायरेक्टली राइट डाउन दिस वैल्यू राइट डाउन हियर तो वो भी ये कर सकता है. तो कंप्लीटली हम 0.247 यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ऑल दी सिनेरियोज यही सिनेरियोज आएंगे ना नीचे. अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ, हाँ दोनों को आ गया. Yes. Okay, can you tell me the final answer? 0.263. 3 decimal places better. हाँ ठीक है 263 ही बोला. Okay, good. ठीक है. Any confusion so far in this question? कि how you are going to do conditional probability or probability? हाँ clear? हाँ clear था ना? हाँ, Okay, let's try this second one. Quite easy, कुछ भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, ट्री डायग्राम पे बस आपको थोड़ा केयरफुली आपको करना है कि वहां कोई मिस्टेक ना कर दो. अदर देन दैट दिस इज सिंपल प्रोबेबिलिटी, नथिंग टू डिफिकल्ट. ठीक है, सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन एंड लेट्स स्टार्ट विद द ट्री. अभी अगर यहाँ पे नोट करो देयर इज नो मेंशन ऑफ ट्री डायग्राम, बट यूजुअली हम ट्री डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर आवरसेल्व्स सो वी वुड नो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है बिकॉज हमें फिजिकली नजर आ रही होती हैं ब्रांचेस. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन. इट सेज that when India needs a taxi, she rings one of the three taxi companies A, B, and C. So it means there would be three branches at first. One would be for A, the next one would be for B, the last one would be for C. Okay, the first, okay, A की probability कितनी है? 50% of her cars calls are to company A. So क्या लिखेंगे A के लिए probability? 0.5, 0.5. Next is B 20% है 0.2 हो जाएगा. And the last, नहीं sorry 20% नहीं है 30% है. 30% is for B, this should be 0.3 और 20% is to C, that should be 0.2. यहाँ तक clear हुआ? हाँ, Okay, the next one is it says a taxi from company A arrives late. Okay, now there are two possibilities. Okay, either the taxi is going to be late or it is not going to be late. So L dash कर लेते हैं, that represents not late. Okay, so late की probability कितनी होगी? 4% means 0.04, 0.04. yes, and for not late it would be 0.96, good 0.96. Now for the next one, late or not late, that is for company B. Company B arrives late at 6%. So what would be the probability? 0.06. Okay, एक सेकंड में लिख लेता हूँ. Let me just draw this branch at the bottom. Okay, हाँ sorry क्या कह रहे थे? 0.06 and not late की क्या हो जाएगी? 0.94, 0.94 actually. 6 तो नहीं देंगे. Okay, last one. C के लिए
For late, the probability is 0.17, 0.17, and for not late, it would be 0.83. 0.83. So this is the tree that we are going to use to find most of the answers. I know कि उसने कहा नहीं है, but we draw कि हमें नजर आए. If you can answer without the tree diagram, it's completely fine. उसमें कोई problem नहीं है. मैं सिर्फ ड्रॉ इसलिए कर देता हूँ ताकि it's clear to you and me. Communicate करना जरा easy होता है, ठीक है? Otherwise आपने जुबानी करना है तो आप कर सकते हो. Now it says find the probability that when Andrea rings for a taxi, it arrives late. Okay, what does it mean actually? Can anyone tell me? कि कौन सी branches चलो से? She calls any of the taxi companies and we have to like see which ones that Okay. are late. बिल्कुल ठीक है. So can you tell me how we are going to let me shade the branch? कौन सी branch shade करूं? Let's start from here. AL. AL. Good. अगर कोई disagree करता हो बोल देना, ठीक है? Next one. BL. B and then late, and the last one is C and then you are late. ठीक हो गया? So I have to write down branches कि A late or B late or C late. Okay, write down the values. So 0.5 into 0.04 plus 0.3 into 0.06 plus, okay, plus मैंने नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा, plus 0.2 into 0.17. Okay, what answer do you get as final one? 0.072. 0.072. Great. हाँ Myra, you got the same answer? G. Oh, okay. Let's try the second part actually. Okay, given that, okay, can you tell me, ये देखो यहाँ पे actually लिखा हुआ है शुरू में ही given that है. So it means that this is going to be a conditional probability. तो conditional probability के लिए हम क्या करते थे? फॉर्मूला क्रिएट करते थे ना, याद है? हाँ याद है कि भूल गए? हाँ याद है. ओके, फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे जरा बताते हो? हाँ, प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड, डैश लगाया और डैश के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया. तो डैश के बाद क्या आना चाहिए जो गिवन दैट वाली प्लेस है? L. लेट. बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इट्स लेट. और शुरू में क्या आना चाहिए डैश से पहले? B. वेरी गुड, इट शुड बी बी. तो जब आप फॉर्मूला क्रिएट करोगे तो फॉर्मूला में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड लेट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट. एग्रीड यहां तक? ओके, ब्रांच कौन सी शेड होगी ऊपर न्यूमरेटर के लिए? BL. बी एंड बी के बाद क्या है? L. बिल्कुल ठीक है, बी एंड एन. सो इसको हम लिख लेते हैं 0.3 टाइम्स 0.06 और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट. व्हाट डज इट मीन कि कौन सी ब्रांच सिलेक्ट होगी? 0.072. हाँ, एक्चुअली ऑल द अदर ब्रांचेस जो आपने ऊपर निकाला था एक्चुअली द सेम थिंग. अगर इफ एनीवन किसी को नहीं पता लगता तो वो दोबारा से भी कैलकुलेट कर सकता है. इट्स कंप्लीटली फाइन. तो ये जो ग्रीन में शेड हो रही है दैट इज फॉर एक्चुअली योर डिनोमिनेटर. अदरवाइज यू कैन सी द सेम आंसर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट जो है हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था. तो वी आर गोइंग टू यूज दैट. अच्छा, हमेशा ऐसे नहीं होता कि ऊपर वाले पार्ट का आंसर नीचे यूज हो जाए, बट 50% ऑफ द टाइम इट डज हैपन. ठीक है, सो यू कैन यूज दैट इफ यू वांट टू. Okay, this one.
ये वाला थोड़ा डिफरेंट बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू टी डायग्राम, ठीक है। ओके, इसमें बहुत इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कि वो कहता है दैट आपको डाटा दिया हुआ है फॉर मेल एंड फीमेल अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड, ठीक हो गया। M be the event the person of male and E be the event of the person employed. Okay. You have to find the probability of men. Means how many males are there. The first part, probability of male. How many males were there? So you would simply add these two up. क्या आता है? 618. बिल्कुल ठीक। Divided by the total number of people. How many total people were there? आप सबको ऐड कर लो। 1281. Okay, let me just write down 358 plus 305. All these would add up to कितना था? 1281. 81. So that should be the answer for the first part. Easy. Okay, ये जो है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज एक्चुअली योर टोटल, ठीक है, जिसको हम बेसिकली आगे भी यूज करना पड़ेगा, तो मैंने इसे लिख दिया। सेकेंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड employed. So how many males are there which are employed? So these one, if you see, okay, these are male, ठीक है, and they are employed, ठीक हो गया। So you are going to write down 412 divided by 1281, ठीक हो गया। हाँ, दोनों को क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? जी। ओके, ठीक हो गया। ओके, थर्ड पार्ट, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज इसके बारे में हमने डिस्कस किया था बट इसकी एग्जांपल नहीं हमने की थी। सो क्वेश्चन आ गया तो हम कर लेते हैं, जिसमें वो पूछता है आर द इवेंट्स इंडिपेंडेंट और नॉट। कौन से दो इंडिपेंडेंट्स? एम एंड डी। ओके, हाउ डू वी प्रूव द इंडिपेंडेंट? मैं अगर याद नहीं है आई विल जस्ट रिपीट इट, ठीक है। इफ इट सेज एम एंड डी, सो जो दो इवेंट्स की बात कर रहा है तो इट मींस एक दफा उनकी प्रोबेबिलिटी कंबाइन देखनी है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, इनको ब्रेक डाउन करके लिखना है, मींस एक दफा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयड। तो अगर आप नोट करो, ये दोनों एक दफा कंबाइन है और एक दफा ये दोनों की सेपरेटली है। समझ आया कि मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा है? Isn't it the same thing? नहीं, अगर सेम थिंग, यस, अगर इफ यू गेट, ठीक है, सेम अगर होंगे तो दे आर इंडिपेंडेंट वैल्यूज के अंदर, ठीक है। हमने चेक करना है कि डू वी गेट द वैल्यूज इक्वल टू, यानी अब इसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी और इनकी निकाल के देखेंगे क्या दोनों साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं आती। इफ दे आर इक्वल, जो आप कह रहे हो ना सेम थिंग है, होनी चाहिए सेम थिंग, इफ दे आर सेम देन दे आर इंडिपेंडेंट, इफ दे आर नॉट सेम देन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये हमने चेक करना है, यही तो वो पूछ रहा है कि आर द इवेंट्स इंडिपेंडेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई करने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जो बात कह रहे हो वो ठीक है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। लेट्स जस्ट चेक इफ यू एक्चुअली गेट इक्वल और नॉट। Okay, how many male and employed were there? 412. 412, good, divided by 1281, completely fine. Now what is the probability of male? How many males were there? हमने ये फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, 618 over 1281. Now times how many were employed? Okay, if you see, look at the employed column, तो ये 412 plus 305, Females. 412 plus, sorry, Females and males. ओके, ये वाली जो चीज है, डज इट स्पेसिफाई, ये वाली चीज इसको देख रहे हैं, डज इट स्पेसिफाई इज इट मेल और फीमेल? नहीं, इसलिए मैंने दोनों को इंक्लूड किया है। यहाँ पे डिफरेंस क्या था जब आप इसको रीड कर रहे थे, इसको कंबाइनली जब हम रीड करते हैं, दिस इज मेल विच आर एम्प्लॉयड, इसलिए हमने उनकी मेल ओनली हु आर एम्प्लॉयड उनको काउंट किया था। यहाँ लास्ट के ऊपर दिस इज ओनली एम्प्लॉयड वंस, इट डजंट मैटर इट्स मेल और फीमेल, ठीक है। ओके। ओके, मुझे दोनों साइड्स का आपने आंसर बताना, डेसिमल के अंदर, प्रेफरेबल इज डेसिमल,
decimal. The first one is 0.32. 0.32 32. is 0.82. And the next 32. one, oh, sorry. See, 0.32. And the second one after the equal, what do you get? 0.27. 0.27. Okay, you can clearly see that these two are not equal. So not independent. Okay? That's how you actually prove if the events are independent or dependent. Okay? First, you have to find the probability of the two events combined and then separately. If you get the equal answers, then it's independent, otherwise they are not. यहाँ तक क्लियर हुआ? जी हाँ मायरा आपको? Yes, but like dependent किस sense में dependent है? देखो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ये होता है कि लाइक अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, इंडिपेंडेंट इज समथिंग कि कॉइन की एग्जांपल अगर आप ले लो, कॉइन पे अगर मैं फ्लिप करता हूं यू गेट अ हेड, अगर मैं दूसरी दफा फ्लिप करता हूं डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चेंजेस बिकॉज ऑफ द फर्स्ट टाइम? No. नो. अगर मैं थर्ड टाइम फ्लिप करूंगा तो डज इट मैटर कि मेरा फर्स्ट या सेकंड टर्न पे क्या आया था? No. क्या वो अफेक्ट कर रही है मेरी थर्ड टाइम के फ्लिप के ऊपर? No, it doesn't. ठीक है, because every time there is a equal chance of 50% of getting either head or either tail. It doesn't change at any time I spin the coin. ये होता है independent because it is not affecting the next turn. अगर आप next पे करते हो तो effect नहीं पड़ रहा. That is independent. Dependent is कि जो मैंने आपको अगर याद है वो बॉयगल वाली एग्जांपल दी थी. So if I take a boy out of the class, so when I am selecting the next boy, is it affecting the total and the number of boys also? Yes. हाँ. तो डू यू सी कि ये डिपेंडेंट है ऑन द प्रीवियस प्रोबेबिलिटी? बात समझ आ रही? So independent does not क्या affect independent effects. सॉरी क्या कह रहे हो? Independent does not affect independent effects. यस, एक्चुअली दैट हैपेंस. और अगर उसको प्रूव करना हो तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव इट. ठीक है, Okay. अब बताओ मायरा, अब समझ आ गया ना कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैसे होते क्या है? Yeah. ठीक है, सो मतलब इफ दे वर इंडिपेंडेंट तो इट डजंट मैटर कि मैं एम और ई को कंबाइन देखूं या सेपरेटली देखूं, आई शुड स्टिल गेट द सेम आंसर इफ दे वर इंडिपेंडेंट. बात समझ आ रही है? इसलिए हम उनको इक्वल रख के चेक कर रहे हैं कि अगर वो हैं इंडिपेंडेंट इट डजंट मैटर कि मैं उनको कंबाइन देखूं या सेपरेटली निकाल के मल्टीप्लाई करूं, आई शुड स्टिल गेट द सेम आंसर. बट वो नहीं आ रहा, इट मींस दे वर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे वर डिपेंडेंट ऑफ समहाउ. ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट कि नहीं? G. Okay, last part. Given that the person is unemployed, find the probability that the person is female. Okay, how do we do this one? Dividing the female unemployed over total unemployed. Divide what? Unemployed by? On the top, unemployed multiplied by female divided by unemployed. Okay, कैसे किया ये? In the I formula. mean, okay, कौन सा वाला? The probability कौन सा? bracket open. Okay, उसका तो conditional probability. ठीक है, because एक तो given that का word use हो रहा है, so you are going to use the conditional probability. Okay. ओके, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि रीड करके आप मुझे फॉर्मूला बता सको. हाँ, ओके, फोर्थ पार्ट है. सो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. हमने प्रोबेबिलिटी लिखा, डैश लगाया, ब्रैकेट क्लोज. डैश के बाद क्या आएगा? गिवन दैट द पर्सन इज
unemployed. So unemployed इधर आ गया, and you have to find the probability of a female. वो यहाँ आ गया. तो फॉर्मूला बना probability of female which was unemployed divided by जो भी यहाँ डिनोमिनेटर है, ओ सॉरी डैश के बाद होता है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आता है. तो probability of unemployed. So how many females were unemployed? How many females were unemployed? 358. 358 divided by the number of unemployed people. यहाँ unemployed आएंगे ना. So how many were unemployed? इनको ऐड कर लो ना. 206 plus 358. Yes, 206 plus 358. Tell me the answer that you get. जीरो पॉइंट कितना आता है? जीरो पॉइंट 634. 0.634. Okay, that should be the final answer. Okay, let's look at this one. You have to draw the T diagram. Let's look at that. Okay, how many branches I am going to draw? Three. Okay, किस किस की ब्रांच होगी? Pizza, burger, curry. Okay, pizza, burger, and curry. Okay, tell me the probabilities. Okay, it's written down 0.35, 0.44, and 0.21. So these are the probabilities for each one of them. Now, when she cooks pizza, Rani has some fruit. Okay, so the probability of having a fruit or not fruit. So F and F dash. So having a fruit is 0.3 and not having a fruit should be how much? 0.7. ठीक है. Fruit and dash. Okay, 0.7. Okay, now having a next line read करो क्या है? हाँ. The next line is when she cooks a burger, she has some fruit. The probability is 0.8. So burger के बाद it's 0.8 and the not having a fruit is 0.2. And the last one, when she cooks the curry, she never has a fruit. तो कौन सी probability कहाँ लिखेंगे? 0 in F. कहाँ पे? ऊपर के नीचे? ऊपर F. She never has a fruit. Good. 0 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया. So that is our tree diagram and that's what you are going to remember. ठीक है. Now based on that we are going to do this second part जिसमें क्या कह रहा है वो? Find the probability that Rani has some fruit. So you have to tell me which branches we are going to select in which Rani is going to have some fruit. ठीक है? Okay. Tell me. Rani has some fruit. कौन सी branch है? Yeah. हाँ? PF. Okay. PF. BF. This one. BF. And the last one should be CF. ठीक हो गया? So let's just write down PF plus BF plus CF. So 0.35 into 0.3 plus 0.44 into 0.8 plus 0.21 into 0. What answer do you get?
0.457. 0.457. 457. Good. And the last part, it says find the probability that the Rani does not have a fruit, given that she have a fruit. She does not have any fruit. Okay. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. Okay. Let's just see क्या आता है. Okay. Tell me how we are going to do this one. Okay. Tree भी मैं नीचे ले आया. क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? Conditional probability. बिल्कुल ठीक है. Conditional probability because the word given that is being used. This one. So dash यहाँ लगा. Okay. Given that के बाद dash के बाद आना क्या चाहिए? No fruit. No fruit means f dash no fruit और dash से पहले Burger. find the probability that Rani does not have a burger. No burger. No burger. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना? बिकॉज बर्गर नहीं है, नो बर्गर. नो बर्गर and does not have a fruit divided by probability of does not have a fruit. Okay. Okay. Which branches are for not burger and having no fruit? यानी यहां से पहले कहाँ जाऊं, ऊपर के नीचे या स्ट्रेट? हाँ, I think कहाँ जाएंगे? सॉरी, ऊपर. ऊपर एंड देन And then ऊपर. ऊपर क्यों जाएंगे? यू हैव टू फाइंड डज नॉट हैव अ फ्रूट. सो Oh. इस साइड पे जाएंगे, ठीक है? ओके. उसके बाद दूसरी ब्रांच कौन सी होगी? क्या बी वाली ब्रांच यानी ये वाली ब्रांच सेलेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे. बिल्कुल ठीक है. बिकॉज इट सेज नो बर्गर्स, तो मींस नीचे जाएंगे सी वाली पे. और सी के आगे कहाँ जाएंगे? ऊपर. सी से आगे ऊपर के नीचे? नीचे. नीचे. बिल्कुल ठीक है. माया, आपको समझ आया? Okay, so write down the values 0.35 times 0.7 plus 0.21 times 1 whole divided by probability of not having a fruit. Let's just shade those branches in the other color. This one, and the last, this one. I hope you can see जो मैंने शेड किया दूसरे कलर में. 0.35 times 0.7 plus 0.44.2 plus 0.21 into 1. These are the three branches that is going to be selected. अब बताओ. सर यहाँ जी जी न्यूमरेटर के लिए जो उन्होंने नॉट बर्गर वाली है उसके अंदर why can't he just like add 0.35 with 0.31 and then multiply it by f not f. नॉट एफ कौन सा वाला लोगे? इतने सारे हैं, तो आप कौन सा वाला लेंगे? जो हमने अभी डिनोमिनेटर में लिखा है उसको कैलकुलेट करके. नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना. यू हैव टू लुक एट द ब्रांचेस व्हिच आर नॉट बर्गर, ठीक है? एंड बिकॉज बात ये है कि if he is selecting a pizza, then having a not fruit has a different probability. अगर आप डिनोमिनेटर से कर देते हो, that is the probability of that also includes the probability of having a burger. बात समझ आ रही है कि नहीं आई? अगर आप आप कह रहे हो ना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, जो which shows that के
उसकी नहीं है प्रोबेबिलिटी। नहीं समझ आया? नहीं। अच्छा, क्या नहीं समझ आया? आप कह रहे हो, यू सेड कि 0.35 में 0.21 ऐड करें और उसके बाद जो नॉट फ्रूट का आया है डिनोमिनेटर हमारा, उससे मल्टीप्लाई कर दें, यही कह रहे जी। हो? ओके। अगर आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो, उस डिनोमिनेटर के अंदर हैविंग नो फ्रूट विद क्या था, विद बर्गर, हाँ, हैविंग नो फ्रूट विद बर्गर है उसमें प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड। देखो ना, हमने वो ब्रांचेस सिलेक्ट करनी है विच डज नॉट हैव अ बर्गर एंड देन डज नॉट हैव अ फ्रूट। अगर आप, पहली बात ये है कि आप 0.35 और 0.21 को कंबाइन नहीं कर सकते, बिकॉज 0.35 यानी पिज्जा के बाद नॉट हैविंग अ फ्रूट हैज अ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू हैविंग अ करी एंड देन नॉट हैविंग अ फ्रूट। बात समझ आ रही है कि हम दोनों को ऐड करके क्यों नहीं कर सकते पहले? जी। देखो ना, ऐड मल्टी दोनों को ऐड तब कर सकते थे इफ दे बोथ हैड द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ फ्रूट आफ्टर पिज्जा और करी। ठीक है, फिर आप उनको ऐड करके कहते हैं कि हाँ, ये दो जो हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं, बिकॉज हैविंग अ आफ्टर हैविंग दीज टू दे बोथ हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ फ्रूट। बट प्रॉब्लम इज कि पिज्जा लोगे तो यू हैव अ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ फ्रूट, और अगर आप कड़ी लोगे तो तब आपकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ फ्रूट। तो हम उन दोनों को कैसे ऐड कर सकते हैं? बात समझ आई? हाँ। बट इट्स लाइक मतलब पहले वाले क्वेश्चंस में जो हमने लाइक एंड वाली इंटरसेक्शन वाले सिंबल से पहले लिखे हम उसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे थे। सो हियर लाइक नॉट बर्गर की प्रोबेबिलिटी को भी वो हम ऐड नहीं करेंगे। देखो, वहां पे प्रॉब्लम ये था कि अगर जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, उसमें वो कहता था कंपनी बी है एंड देन लेट, देयर इज ओनली वन ब्रांच दैट कंटेन्स दिस, कि बी वाली ब्रांच विच गोज टू लेट एक ही ब्रांच है, तो इसलिए हम एक ही लिखते थे 0.3 टाइम्स 0.06। बट अगर वो कहता नॉट बी, बी नहीं है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि ए के साथ वो लेट हो जाए या फिर सी के साथ लेट हो जाए। तो हम क्या सिर्फ, अब आप कह रहे हो 0.5 प्लस 0.2 करेंगे, 0.7, और उसको लीड की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता था, यू हैव टू सिलेक्ट एवरी ब्रांच पॉसिबल। ठीक है, और मैंने आपको जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ऊपर वाली ब्रांच का नीचे वाली ब्रांच से कोई लिंक नहीं होता, याद है आपको? क्या नहीं? यानी मींस कि ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, मींस दिस वन, इसका कोई लिंक नहीं होगा यहाँ नीचे वाली ब्रांच के साथ, और इस ब्रांच का कोई लिंक नहीं होगा इस नीचे वाली ब्रांच के साथ। तो इनको आप एक दूसरे के साथ इंटरलिंक ना करो। यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द ब्रांचेस विच सेटिस्फाइज दिस स्टेटमेंट एक्चुअली। आप इस चीज पे फोकस करो कि यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द ब्रांचेस विच सेटिस्फाइज दैट नॉट हैविंग अ बर्गर। तो वो कितनी ब्रांचेस है जिसमें बर्गर नहीं है? टू। तो आपने दो ब्रांचेस सिलेक्ट की, एंड नॉट हैविंग अ बर्गर देन हैविंग नो फ्रूट, तो उसके आगे हम नॉट फ्रूट वाली डायरेक्शन में चलेगा। सो दिस ब्रांच एंड दीज टू ब्रांचेस फॉर द ओनली वन दैट कंटेन्स नो बर्गर एंड देन नॉट हैविंग अ फ्रूट। बात समझ आई? तो इस ब्रांच का कोई लिंक नहीं है इसके साथ, इसलिए तो बीच में प्लस लगा है। दिस इज टेलिंग दैट दे आर टू डिफरेंट सिनेरियोस एंड दे बोथ हैव अ डिफरेंट परसेंटेज ऑफ हैपनिंग। बात समझ आई? ठीक है, तो आपने याद रखना, ट्री में आपने सेपरेटली सारी ब्रांचेस को लिखना है। यू कैन नॉट मर्ज लाइक दी, जिस तरह आप मर्ज कर रहे थे हम उस तरह मर्ज नहीं कर सकते वैल्यूज को एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब मुझे बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई बात, कोई चीज समझ रहे हैं? चलो, कल हम यहीं से आगे थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ आया टॉपिक के नहीं आया? आगे। आ गया। चलो,
कल हम थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे इफ अगर कोई डिफरेंट टाइप्स के मिले तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। बट इसी तरह के होते हैं, ठीक है, इजी होते हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी है। बट नॉर्मली ओ लेवल्स में 2 ब्रांचेस होती थी, या 3 ब्रांचेस हो जाती है। एंड द न्यू थिंग इज आल्सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अदर देन दैट बाकी सारी चीजें देखोगे तो वो सेम प्रोबेबिलिटी को ट्रीट उसी तरह से ही करते हैं।